Hello students, in this video we are going to discuss the NCERT question answers of the third chapter from class 10th book First Flight. The chapter is Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. In our previous two videos we have read the chapter, full chapter, and here we are going to discuss the question answers that have been raised in the NCERT textbook. So we start our discussion. Our first question is, where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? And this question is at page number 18, and that is the question that was raised while reading the text. So where did the ceremonies take place? The ceremony took place in the campus of the Union Building of Pretoria. Pretoria, the capital of South Africa, and the Union Building there, the ceremonies took place over there. The Parliament House in New Delhi, the Rashtrapati Bhavan in New Delhi, the Supreme Court of India in New Delhi, and Madras High Court in Chennai. These are some of the examples from India, the buildings that have been made of sandstone. And then can you see how 10th May is an autumn day in South Africa? We have to discuss. So students, what is the autumn? Autumn is the season when the floor or the earth that is totally covered by many leaves, the leaves that have fallen from all around. And 10th May is the autumn day in South Africa because on this day there was the largest gathering of international leaders on South African soil for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. On 10th May साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी गैदरिंग थी. किसके लिए? इंटरनेशनल लीडर्स की एक बड़ी सी गैदरिंग हुई थी सो दैट द न्यू नॉन रेशियल गवर्नमेंट कैन बी इंस्टॉल्ड. पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और उसके इंस्टॉलेशन के लिए, उसकी स्टार्टिंग के लिए बहुत सारे जो इंटरनेशनल लीडर्स थे दे हैव लैंडेड ऑन दैट अर्थ. At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? Yes, two different things are there, two opposite things. In the beginning of speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. Disaster, vinash. Extraordinary human disaster. And at the end, he is speaking about glorious human achievement. Glorious, that is full of glory. And which are these two things? By human disaster, Mandela means to say that colored people have suffered a lot due to discrimination in the hands of white. Human disaster क्या था? Apartheid system under which colored people, dark-skinned people, they had to suffer by the hands of the white people because the government and the law, that was all of the white people. This was the human disaster that was extraordinary because South African country was the first country to apply it as a law. He considered it as great glorious human achievement that a black person became the president of a country where the blacks are not considered as human beings and are treated badly. And glorious human achievement क्या था? That a black person became the first black president of that country where the blacks were not treated even as the human beings. ऐसी country जहाँ blacks को human beings की तरह ही treat नहीं किया जाता था, वहाँ एक black person जो है president of the country बना. This was the glorious human achievement. What does Mandela thank the international leaders for? Mandela ने international leaders को किस बात के लिए, for what? He thanked them. Mandela felt privileged to be the host of the nations of the world because not too long ago the South Africans were considered outlaws. Yes, Mandela ने उन सबको थैंक यू इसलिए कहा because he felt privileged. एक स्पेशल फील कर रहे थे टू बी द होस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि आज वो पूरे वर्ल्ड के सभी नेशंस के होस्ट हैं, सभी लोग वहाँ आए हैं और ये वही लोग हैं हु नॉट टू लॉन्ग अगो, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, द साउथ अफ्रीकन पीपल वर आउटलॉस. क्यों? क्योंकि इन लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया था इंटरनेशनल लेवल पर साउथ अफ्रीका को बिकॉज साउथ अफ्रीका की पॉलिसी अच्छी नहीं थी. और आज जब वहाँ डेमोक्रेसी शुरू हो रही है तो ये सब लोग वहाँ विटनेस करने आए हैं और इसलिए मंडेला उन्हें थैंक कहते हैं. ही दस थैंक्ड ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर हैविंग कम टू विटनेस हिज इन्वेस्टिचर एज प्रेसिडेंट since this event could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity. because ये इवेंट जो है एक कंट्री में ह्यूमन डिग्निटी की विक्ट्री नहीं है,
बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक तरह से ये कॉमन विक्ट्री है, एक सामान्य जीत है। किसकी? जस्टिस की, पीस की एंड ह्यूमन डिग्निटी की। और ये लोग सब आज उस इन्वेस्टिचर सेरेमनी को अटेंड करने आए हैं। What ideals does he set out for the future of South Africa? मंडेला ने कौन से आइडियल सेट आउट किए, कौन सी चीज़ें थी जो मंडेला जो है चाहते थे साउथ अफ्रीका के लिए, कौन सी बातें जो है उन्होंने रखी कि साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए ऐसा होगा। मंडेला सेट आउट द आइडियल्स ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, देन रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल। पॉवर्टी को कम किया जाएगा, सफरिंग को रिमूव किया जाएगा, लोगों को जो है जस्टिस मिलेगा। ही ऑल्सो सेट द आइडियल फॉर अ सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ओरिजिन। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा दैट एक ऐसी सोसाइटी सेटअप होगी जहाँ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना जेंडर के बेस पर ना रेशियल ओरिजिन, चाहे कोई ब्लैक हो चाहे कोई वाइट हो, किसी भी रेस किसी भी प्रजाति में कोई पैदा हुआ हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई? मिलिट्री जनरल्स अभी क्या कर रहे हैं, पहले क्या करते थे और उनका एटीट्यूड पहले से अभी कैसे चेंज हुआ। द हाइएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स थे साउथ अफ्रीका के और अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और इवन पुलिस ऑल्सो, टुडे दे सैल्यूटेड मंडेला हु वाज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। एंड आज ये लोग अपनी लॉयल्टी को प्लेस कर रहे थे। देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्लैक हैड टेकन ग्रेट चेंज, इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग अ ब्लैक दे सैल्यूटेड हिम। ये वही लोग थे जो नॉट टू लॉन्ग अगो they had arrested Mandela, but today they were not arresting him, they were saluting him. Why were national anthems sung? On the day of the inauguration, two national anthems were sung, one by the whites and the other one by the blacks, because there were two national anthems. One was before apartheid system and one of whites that was applied after apartheid system. During apartheid system दोनों नेशनल एंथम गाए गए। एंड वाई? दे सिम्बोलाइज द इक्वालिटी ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स। ब्लैक्स एंड वाइट्स की इक्वालिटी को सिम्बोलाइज करने के लिए 1997 में दोनों लिरिक्स को मिलाकर एक न्यू नेशनल एंथम भी बना, सो दैट ऑल कैन फील दैट दे हैव द राइट्स, इक्वल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री in the first decade and in the final decade of the 20th century. Mandela in this chapter has described the system that yes, there were two systems, first before he was born and another one when he was going to be the president. In the first decade of the 20th century, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial discrimination, domination against the dark-skinned people of their own land, thus creating the basis of one of the harshest and most inhuman society of the world had ever known. फर्स्ट डिकेड में क्या हुआ था? जितने भी वाइट स्किन पीपल थे उन्होंने आपस के डिफरेंसेस को पैचअप किया। पैचअप करने का मतलब आपस के डिफरेंसेस मिटा के उन्होंने यूनिटी कर ली और ब्लैक्स के अगेंस्ट एक सिस्टम बना दिया रेशियल डोमिनेशन का, डार्क स्किन पीपल के अगेंस्ट। और इस तरह से वर्ल्ड की सबसे हार्श, सबसे इनह्यूमन मीन क्रूअल सोसाइटी बनी। Apartheid system is regarded as the most inhuman system in the world. In the last decade of the 20th century, same 20th century थी और इसी का last decade था, उसमें क्या हुआ? The previous system had been overturned forever. ये जो पिछला apartheid system था इसको throughout overturn कर दिया and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. अब एक ऐसा system बना जो कि सभी लोगों के राइट्स को इक्वल मानता है, रिकॉग्नाइज करता है, चाहे उनकी स्किन का कलर कैसा भी हो। दिस वाज द डिफरेंस। इन द फर्स्ट डिकेड द ब्लैक्स वर डोमिनेटेड, द सिस्टम स्टार्टेड, एंड इन द लास्ट डिकेड ऑल वर इक्वल। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए करेज का क्या मीनिंग है? फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर फियर. According to him, brave men need not to be fearless, but they should be able to conquer fear. मंडेला के अकॉर्डिंग क्या है कि करेज डजंट मीन कि हमें फियर नहीं है, हमें डर नहीं है। रादर करेज मीन्स दैट वी हैव गेन विक्ट्री ओवर आवर फियर। हमने अपने डर पर जीत हासिल कर ली है। एक फियरलेस मैन ऐसा नहीं होता जिसके अंदर एक करेजियस मैन ऐसा नहीं होता जिसके अंदर डर नहीं होता, बल्कि वो होता है
जो अपने डर को कॉन्कर कर ले, विन कर ले. Which does he think is natural, to love or to hate? At the end part of the chapter this has been described. क्या चीज़ ज़्यादा नेचुरल है, लव या हेट? According to Mandela and according to all of us, love is more natural. Love comes more naturally to the human heart than to hate. What twin obligations does Mandela mention? Mandela has mentioned twin, double, dual obligations or duties of a man. And which are these duties? Mandela mentions that every man has twin obligations. The first is to his family, parents, wife and children, and the second obligation is to the people, his community and his country. The first is a personal duty and the another one is a national duty. First is towards the family, towards parents, towards wife, towards children, and the another one is towards nation, towards community, towards people. What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? Mandela, as a boy and as a teenager, he used to think that he was free. But later on, जब वो बड़ा हुआ तब उसे रियलाइज हुआ दैट नहीं, ये फ्रीडम नहीं थी जिसे वो अपनी फ्रीडम समझ रहा था. तो उस टाइम चाइल्डहुड में और टीन एज में मंडेला के लिए फ्रीडम का कॉन्सेप्ट क्या था और ये बाद के व्यू से कैसे कंट्रास्ट करता था. लाइक एनी अदर किड, फॉर मंडेला ऑल्सो द फ्रीडम मेंट अ फ्रीडम टू मेक मैरी एंड एन्जॉय द ब्लिसफुल लाइफ. किसी भी दूसरे बच्चे की तरह मंडेला के लिए भी फ्रीडम का मीनिंग क्या था? टू मेक मैरी मीन हैप्पीनेस के साथ रहना एंड एन्जॉय द ब्लिसफुल लाइफ, हैप्पी लाइफ को एंजॉय करना. एवरी चाइल्ड फील्स हिमसेल्फ फ्री इफ ही इज फ्री टू प्ले. Once anybody becomes an adult, then antics of childhood looks like transitory. And जैसे ही एक इंसान अडल्ट होता है तो जो चाइल्डहुड के जितने भी थॉट्स हैं वो सब उसे ट्रांजिटरी लगने लगते हैं. ट्रांजिटरी मीन शॉर्ट लिविंग, छोटी सी लाइफ वाले. बिकॉज मोस्ट ऑफ द चाइल्डिश एक्टिविटी इज वेस्टफुल फ्रॉम एन अडल्ट पर्सपेक्टिव. एंड क्यों? क्योंकि एक अडल्ट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जितनी भी चाइल्डिश एक्टिविटी है, बचपने की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, ये सब वेस्टफुल है. वंस यू आर अडल्ट देन सम डे यू हैव टू अर्न अ लाइवलीहुड टू ब्रिंग द बेकन होम. मीन जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको लाइवलीहुड कमानी ही पड़ती है, रोजी रोटी, ताकि आप अपने घर पर खाना ला सके. देन ओनली यू गेट एन ऑनरेबल एग्जिस्टेंस इन द फैमिली एंड इन द सोसाइटी. डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री? वाई और वाई नॉट? मंडेला को क्या लगता है कि ऑप्रेसर फ्री है या नहीं, क्यों या क्यों नहीं? मंडेला डज नॉट फील दैट द ऑप्रेसर. ऑप्रेसर कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो दूसरों को डोमिनेट कर रहा है, वही ऑप्रेसर होता है जो दूसरों को ऑप्रेस करे, सप्रेस करे. तो मंडेला को लगता है दैट ऑप्रेसर इज ऑल्सो नॉट फ्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑप्रेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. क्योंकि एक ऑप्रेसर जो होता है वो एक प्रिजनर है. किस चीज़ का? हेट्रेड का. वो भी एक कैदी है, नफरत का. वो अपनी नफरत में कैद है. हु इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. वो प्रेजुडिस यानी नेगेटिव ओपिनियंस और नैरो माइंडेडनेस की बार्स यानी जाल के पीछे लॉक्ड है. ही फील्स दैट बोथ द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. कि वो पर्सन जो दूसरों को टॉर्चर कर रहा है और वो पर्सन जो टॉर्चर हो रहा है, दोनों ही अपनी ह्यूमैनिटी से रॉब्ड है. दोनों में इंसानियत नहीं बची है. Why did such a large number of international leaders attend the inauguration and what did it signify the triumph of? Yes, a lot of people, a lot of international leaders, they attended the inauguration and what did it signify the triumph of? क्यों लोगों ने attend किया? ये किस चीज़ को signify कर रहा है? The presence of large number of international leaders was a gesture of solidarity from international community to the idea of the end of apartheid. ये जो गैदरिंग थी लार्ज नंबर ऑफ पीपल की, दैट वाज जस्ट अ जेस्चर. जेस्चर मीन एक एक्ट था. किस चीज़ का एक्ट था ये? दैट येस दे ऑल आर नाउ विद अफ्रीका. वंस व्हेन अपार्थाइड सिस्टम हैज एंडेड तो ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स दे आर विद साउथ अफ्रीका. इट सिग्निफाइड द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर एविल. ये था एक ट्रायम्फ. ट्रायम्फ मीन एक जीत, गुड की जीत, अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर. द ट्रायम्फ ऑफ द आइडिया ऑफ अ टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. Where the society is tolerant, that is tolerant towards each and everyone, that does not discriminate anyone on any basis. It was the symbol of that society. What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? Mandela at one place said
कि ऑल द अफ्रीकन पैट्रियोट्स, वो सारे अफ्रीकन पैट्रियोट्स देशभक्त जो उससे पहले आए और जो उससे पहले आकर मर चुके हैं, आई एम जस्ट अ सम ऑफ ऑल दीज थिंग्स, मेरे अंदर जो है सिर्फ उन लोगों का एक सम है। तो मंडेला के ये कहने का मीनिंग क्या हुआ? मंडेला वॉन्ट्स टू पे ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपल हु हैड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम। मंडेला जो है यहाँ एक तरह से एक ट्रिब्यूट पे करना चाहता है उन सभी लोगों को जिन्होंने अपने लाइफ जो है फ्रीडम के लिए सेक्रीफाइस कर दी। He feels that he is the sum of all those African patriots who had gone before him because those heroes of yesterday years had paved the path of cooperation and unity for him. क्योंकि ये हीरोज जो पिछले सालों में आए और जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, दे इवन अ काइंड ऑफ लाइटेड अ लैम्प और अ फायर फॉर फ्रीडम इन द हार्ट ऑफ मंडेलाज. Therefore, he got the support of all his people to be able to come to power to bring equality for his own people. और ये उन्हीं की वजह से हुआ कि मंडेला ने एफर्ट किया और उसे अपनी कम्युनिटी का सपोर्ट मिला, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट मिला और अपार्थाइड सिस्टम का एंड हुआ. Would you agree that the depth of oppression creates height of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own examples to this argument? दिस इज़ अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. क्या आपको भी यही लगता है कि जब एक ऑपरेशन की डेप्थ जो होती है, इंसान को बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया जाए, बहुत ज़्यादा दबाया जाए, टॉर्चर किया जाए, तो वो गहराइयाँ जो है उसके कैरेक्टर को एक्सट्रीम हाइट पर ले जाती है? प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ही इंसान को जो है हाई लेवल का मोरल प्रोवाइड करते हैं. क्या आप इस आइडिया से अग्री करते हैं? हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल्स टू दिस आर्ग्यूमेंट? Yes, I agree that the depth of oppression creates heights of character. Nelson Mandela illustrates this by giving examples of great heroes of South Africa who sacrificed their lives in the long freedom struggle. नेल्सन मंडेला ने भी इसको एलोबोरेट किया है बहुत सारे हीरोज के एग्जाम्पल्स देकर. इंडिया इज़ फुल ऑफ सच एग्जाम्पल्स. इफ़ वी सी इन द इंडियन पर्सपेक्टिव, ऐसे एग्जाम्पल से इंडिया भरा पड़ा है. ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल देयर वॉज अ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स ऑफ ग्रेट कैरेक्टर्स. Probably the oppression of British rule created so many men of such character. ये ब्रिटिशर्स का ऑपरेशन ही था जिन्होंने हमें टॉर्चर किया, उसी वजह से इस तरह के करेजियस मैन जो है वो सामने आए. इफ़ वी कंपेयर दिस विद द इक्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया इज हैविंग टुडे, देन नेल्सन मंडेला सीम्स टू बी एब्सोल्युटली राइट. हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? मंडेला की जो अंडरस्टैंडिंग थी फ्रीडम के लिए, वो कैसे एज और एक्सपीरियंस के साथ चेंज हुई? तो बताया गया था विद एज नेल्सन मंडेला रियलाइज दैट ही हैड अ लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू हिज पीपल. बिगिनिंग में एज अ चाइल्ड उन्हें लगता था दैट ही वॉज फ्री, बट जैसे जैसे वो एजिड हुए उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है अपने पीपल के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए एंड अपनी कंट्री के लिए. आज अब वाई मंडेला डिड नॉट हैव अ हंगर फॉर फ्रीडम बिकॉज ही थॉट ही वॉज बॉर्न फ्री. क्योंकि उन्हें ये लगता था कि वो फ्री पैदा हुए हैं, इसलिए उन्हें फ्रीडम की कोई हंगर भी नहीं थी, वो चाहते भी नहीं थे, उनके अंदर कोई डिजायर नहीं थी. ही बिलीव दैट एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ हिज ट्राइब. जब तक वो अपने ट्राइब के कस्टम्स को मानते रहे, उन्हें ऐसे ही लगा कि वो फ्री हैं. ही वॉज फ्री इन एवरी पॉसिबल मैनर. ही हैड सर्टेन नीड्स एज अ टीनेजर एंड सर्टेन नीड्स एज अ यंग मैन. जैसे एक टीनेजर के तौर पर और यंग मैन के तौर पर उनकी ज़रूरतें थोड़ी बहुत लिमिटेड थी. ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट ही वॉज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड. बट जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उन्हें रियलाइज हुआ कि बॉयहुड में वो सेल्फिश रहे. ही स्लोली अंडरस्टैंड्स दैट इट इज़ नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट इज़ बीइंग कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स. इन द बिगिनिंग ही यूज टू थिंक ऑफ हिज ऑन. लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये रियलाइज हुआ कि सिर्फ उन्हीं की फ्रीडम नहीं थी, बल्कि सभी ब्लैक पीपल की फ्रीडम थी जिसको कर्टेल किया गया है. इट इज़ आफ्टर अटेनिंग दिस अंडरस्टैंडिंग दैट ही डेवलप्स अ हंगर ऑफ फ्रीडम ऑफ हिज पीपल. और इसी अंडरस्टैंडिंग के बाद कि उनकी फ्रीडम अकेले की मैटर नहीं करती, दिस इज़ द फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल, और तभी उनके अंदर जो वो है हंगर ऑफ फ्रीडम डेवलप हुए. हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? और इस हंगर फॉर फ्रीडम ने मंडेला की लाइफ को कैसे बदल दिया? मंडेला रियलाइज्ड इन हिज यूथ that it was not just his freedom that was being curtailed but the freedom of all blacks. The hunger for his own freedom became the hunger for the freedom of his people. This desire of a non-racial society transformed him into a virtuous and self-sacrificing man. जब उन्हें रियलाइज हुआ दैट उनकी अकेले की नहीं बल्कि सभी ब्लैक्स की फ्रीडम कर्टेल की जा रही है, देन ही डेवलप्ड अ हंगर फॉर फ्रीडम.
और जैसे उन्हें हंगर फॉर फ्रीडम क्रिएट हुई तो वो एक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन, अभी वो एक सेल्फिश मैन नहीं बचे बल्कि एक वर्चुअस अ मैन विद लॉट ऑफ क्वालिटीज और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन बने. And he joined the African National Congress, and this changed him from a frightened young man into a bold man. और उसके बाद वो एक डरे हुए इंसान से एक बोल्ड मैन में कन्वर्ट हो गए. So students, this was the discussion about all the questions that have been asked in your textbook. In our next video, we'll come with the questions that have generally been asked in the question papers of CBSE. So I hope you have understood all the questions, the concept behind it, and the answers that are relevant to these questions. And hopefully you have got the idea how you have to express your thoughts in your examination also, so that you can get good marks. So keep learning. Thank you.